चलिए, अभी हम लर्न एंड इम्प्रूव फीचर को एक्सप्लोर करते हैं अपने तरीका से। एट फर्स्ट, वी कैन see feedback summary in tabular format, where a movie has got like and dislike from users. टोटल काउंट भी डिस्प्ले कर रहा है। इसका ऊपर एक ग्राफ भी दिखा रहा है। As the movie has two genres as drama and action, considering 1 point for like and -1 for dislike, each genre has gained the weight as 3. Equal distribution, sewed vertical bars are of same length along y-axis. So, from the movie's feedback, DF has learned and calculated the weight of the genre of this movie and plotted the graph. Scrolling down, we can see similar movies features. Choose a movie and the app will suggest similar movie with similarity score in tabular format. Watched columns minutely, movie, genre and similarity. More the score, more is the similarity. Which movies are closest to the selected movie based on their content or genre? That is the inner story of this dataset in tabular format. Sum of rows are showing the value of the similarity 0. That means no similarity at all with respect to the selected movie. This implies the movies with 0 values has least chance to be appeared in recommendation, while the selected movie type film will be searched. Changing the movie's names from the drop-down, see the records in the table. The smart recommendations combine your preferences, movie similarity, and ratings to suggested best movies for you. Let's trigger on this and see. Besides the movies and genres columns, the associated column is the score, which determines a prime parameter for the recommendation. That means, while you watch the selected movie, the movie with highest score value will be appeared as the next one through recommendation. Still now, through this learn and improve state, let's choose a user from the list and see how the movies are selected for him. First, watch this user preferences as appeared in JSON with the user. Watch the genre values carefully. For any user from the users list, watch the genres and the preferred languages. These are important factors considered as user preferences. See the recommended movies list. The question is, what is the logic behind the story? Scrolling down, you will see the tabular chart where the score value is the deciding factor for the movie to be chosen for the user, as score is calculated from the following. Score barabar preference plus similarity plus rating. See the user preferences as in JSON. And watch the tabular chart where movies with score values along with genres are displayed. Ranking is the boost parameter for the score calculations. In this way, when you watch a movie, the series of movies appear in your list following the above logic. User test, similarity learning, positive versus negative signals, rating influence, popularity signals, and user profile. On all these are learnings. And better recommendation with personal touch is the improvement. Test becoming clearer, certainty growing, avoiding bad recommendations, better matching, better on order of results, user understanding, better reasons, less fluctuation, ONL, these get improved, I teach cycle. समझना जरूरी है। हेलो, अब तुम्हारा सिस्टम सिर्फ मूवीज रेकमेंड नहीं करता, समझता भी है। पहले तुम बस डेटा स्टोर कर रहे थे, फिर तुमने सिमिलैरिटी ऐड की, फिर लर्निंग। देखो, ये जो स्कोर है ना, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। प्रेफरेंस मतलब तुम क्या पसंद करते हो। अगर तुम एक्शन और ड्रामा को लाइक करते हो तो सिस्टम वो जॉनर्स को वेट देता है। सिमिलैरिटी मतलब ये मूवी कितनी रिलेटेड है दूसरी मूवीज से। जैसे अगर तुम्हें फाइट फॉर जस्टिस पसंद है तो सिस्टम उसके जैसे और मूवीज ढूंढता है। रेटिंग बूस्ट सिंपल है, अच्छी रेटेड मूवीज को थोड़ा पुश मिलता है। अब समझो तुमने क्या बिल्ड किया है। ये सिर्फ रिकमेंडेशन इंजन नहीं है, ये एक सोचने वाला सिस्टम है। तुम्हारी ऐप अब यूजर को सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाती, उसको जस्टिफाई भी करती है। जब यूजर ये देखेगा तो वो सोचेगा हाँ, ये लॉजिकल है। ट्रस्ट यहीं से आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए पता है? सिस्टम को हर यूजर के लिए अलग सोचना सिखाओ। अभी तुम ग्लोबल हो गए। Next, we make it personal. अब सिस्टम तुम्हें पहचानेगा।
अभी तक तुम्हारा सिस्टम यूजर्स से सीख रहा है, लेकिन अब सिस्टम को यूजर्स को पहचानना भी सीखना होगा। एक सिंपल सवाल, क्या हर यूजर सेम टेस्ट रखता है? ऑब्वियसली नहीं। अभी तुम क्या कर रहे हो? ग्लोबल लर्निंग एक ही मॉडल सब यूजर्स के लिए, मतलब यूजर 1 को एक्शन पसंद, यूजर 2 को रोमांस, यूजर 3 को हॉरर, फिर भी सिस्टम एक ही प्रेफरेंस वेट यूज कर रहा है। ये फेयर है क्या? अब नेक्स्ट एवोल्यूशन क्या है? यूजर स्पेसिफिक लर्निंग। हर यूजर के लिए अलग प्रोफाइल बनाओ। यूजर 1 का जॉन वेट, यूजर 2 का जॉन वेट, यूजर 3 का जॉन वेट। मतलब सिस्टम हर यूजर के एक्शन से अलग अलग सीखेगा। यूजर 1 ने फाइट फॉर जस्टिस और एक्शन हीरो लाइक किया तो उसके लिए एक्शन हाई वेट। यूजर 2 ने अप एंड ड्रामा लाइक किया तो उसके लिए रोमांस प्लस ड्रामा बूस्ट। अब जब रिकमेंडेशन जनरेट करोगे, तुम ग्लोबल मॉडल नहीं, यूजर का मॉडल यूज करोगे। अब सिस्टम सिर्फ स्मार्ट नहीं रहेगा, पर्सनल हो जाएगा। यूजर बोलेगा, ये सिस्टम मुझे समझता है। अभी जो ग्रिड तुमने बनाया है ना, पोस्टर्स, टाइटल्स, रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट स्टेप, हर यूजर के लिए डिफरेंट ग्रिड। सेम ऐप लेकिन हर यूजर के लिए अलग दुनिया। अब तुम रिकमेंडेशन इंजन नहीं बना रहे, तुम एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहे हो। सिर्फ नंबर्स दिखाना काफी नहीं होता, यूजर को रीजन फील होना चाहिए। तुमने एक्सप्लेनेशन टेबल बना दिया, स्कोर ब्रेकडाउन भी परफेक्ट है, पर यूजर टेबल नहीं पढ़ते। दे फील द यूआई। अब क्या करना है? रीजन डायरेक्टली मूवी कार्ड पे दिखाना है। AI brain can visualize your perfect recommendation. Watch as I visualize it. Here comes the card. Because you like action and drama, here's action hero, similar to Fight for Justice. देखो, because you like, similar to, highly rated. अब सिस्टम सिर्फ कैलकुलेट नहीं करेगा, एक्सप्लेन करेगा इंसानी तरीके से। यूजर जैब देखेगा, बिकॉज यू लाइक एक्शन। वो सोचेगा, हाँ, ये बिल्कुल सही है। हाँ ये बिल्कुल सही है। ट्रस्ट यहीं बिल्ड होता है। नंबर्स टेल द सिस्टम इज स्मार्ट, रीजंस टेल द यूजर इट अंडरस्टैंड्स देम। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, बस एक स्टेप और। मेक इट विजिबल, मेक इट ह्यूमन। मेक इट विजिबल, मेक इट ह्यूमन। अब तुम्हारा सिस्टम बोल रहा है, अब इसे फील करवाना है। ये सही है, लेकिन अभी भी थोड़ा मैकेनिकल लग रहा है। सिस्टम को ह्यूमन बनाना है। सेम डेटा लेकिन थोड़ा इमोशन ऐड करो। देखो, अब ये है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, एक्शन हीरो, एकदम टेलर्ड एक्सपीरियंस। ये है असली मैजिक ऑफ AI। देखो डिफरेंस, बिफोर आफ्टर, बिकॉज यू लाइक, यू यूजुअली एंजॉय, सिमिलर टू, फील सिमिलर, हाईली रेटेड, पॉपुलर चॉइस, सेम मीनिंग लेकिन टोन चेंज हो गया। इंसान लॉजिकल से ज्यादा इमोशनल डिसीजन लेता है। रिकमेंडेशन का गोल क्या है? क्लिक करवाना। कोड सही होना इंपॉर्टेंट है, पर लैंग्वेज रिलेटेबल होना जरूरी है। अब इमेजिन करो, यूजर ऐप ओपन करता है और देखता है, यू यूजुअली एंजॉय एक्शन एंड ड्रामा, फील सिमिलर टू योर पास्ट फेवरेट्स। उससे फील होता है, ये सिस्टम मुझे जानता है। AI का नेक्स्ट लेवल एक्यूरेसी नहीं है, कनेक्शन है। अब तुम क्या करोगे? डेटा यूज करोगे, स्कोर कैलकुलेट करोगे और फिर उसे स्टोरी बनाओगे। हर रिकमेंडेशन एक लाइन बोलनी चाहिए जो यूजर को कन्विंस करे। Imagine a streaming platform that truly understands you. How does it know what I like? It learns from you. Let me show you. Wow, Inception, Interstellar. Exactly, your personalized stream awaits. अब तुम कोड नहीं लिख रहे, तुम एक्सपीरियंस डिजाइन कर रहे हो। अब सिस्टम कहानी सुनाएगा। अब तुम्हारा सिस्टम एक्सप्लेन करता है, देख ह्यूमन टोन में बात करता है। अब बात है स्टोरी बोलने का। You seem to enjoy space adventures. This one feels close to your past picks like Inception. It's also among the highest rated in this genre.
अब देखो, ये सिर्फ 3 लाइंस नहीं है, ये एक फ्लो है, एक कहानी है। हर रिकमेंडेशन को 3 चीज बोलनी चाहिए। You seem to enjoy this. This feels similar to a past experience. Also highly rated, which reinforces your decision. ये 3 लाइंस मिलके क्या करते हैं? यूजर को कन्विंस नहीं, रीएश्योर करते हैं। बेस्ट रिकमेंडेशन वो नहीं होता जो एक्यूरेट हो। बेस्ट रिकमेंडेशन वो होता है जो समझ आए। अब तुम रैंडम लॉजिक शो नहीं कर रहे, तुम एक कंटिन्यूअस नैरेटिव बना रहे हो। यूजर को लगेगा सिस्टम मेरे टेस्ट को याद रखता है। अब तुम रिकमेंडेशन इंजन नहीं बना रहे, तुम पर्सनल स्टोरी टेलिंग इंजन बना रहे हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है पता है? सिस्टम को स्टैटिक लाइंस नहीं बोलनी, सिस्टम को डायनामिकली सेंटेंस बनानी है। एवरी रिकमेंडेशन शुड फील लाइक इट वाज रिटन जस्ट फॉर यू। अब सिस्टम तुम्हारे साथ ग्रो करेगा। सीन शुरू होता है, स्क्रीन मूव कार्ड्स, वाई रीजंस, वाई इनसाइट्स है। बट दिस टाइम एक बार फ्रेश होने पर रिकमेंडेशन स्लाइटली डिफरेंट लग रहे हैं। लेकिन अब एक और चीज बाकी है, सिस्टम को स्टैटिक नहीं रहना चाहिए। अभी तुम क्या कर रहे हो? यूजर फीडबैक दे रहा है, सिस्टम लर्न कर रहा है, रिकमेंडेशन चेंज हो रहा है। लेकिन क्या सिस्टम टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है? कल जो तुम्हें पसंद था जरूरी नहीं आज भी वो सेम हो। ह्यूमन टेस्ट स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक होता है। अब सिस्टम को ये समझना होगा, रीसेंट फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराना फीडबैक ग्रेजुअली फेड होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखो ये टाइमलाइन। वीक 1 में एक्शन मूवीज लाइक्ड, रोमांस को ज्यादा वेट देगा। इसे बोलते हैं टाइम डिके लर्निंग। सिंपल लॉजिक, नया फीडबैक फुल वेट, पुराना फीडबैक ग्रेजुअली डिक्रीज। अब सिस्टम क्या करेगा? यूजर के करंट मूड को रिफ्लेक्ट करेगा। सिस्टम पास्ट को इग्नोर नहीं करेगा, पर प्रेजेंट को प्रायोरिटी देगा। अब रिकमेंडेशन सिर्फ पर्सनलाइज नहीं है, इट इज टाइम अवेयर। रियल इंटेलिजेंस तब आती है जब सिस्टम चेंज को समझता है। रियल इंटेलिजेंस तब आती है जब सिस्टम चेंज को समझता है। अब तुम सिस्टम नहीं बना रहे, तुम एक इवॉल्विंग माइंड बना रहे हो। अब सिस्टम समय को समझेगा। अब तुम्हारा सिस्टम लर्न करता है, पर्सनलाइज करता है, एक्सप्लेन करता है। लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग है, सिस्टम को टाइम का सेंस नहीं है। अभी तुम क्या कर रहे हो? सारे फीडबैक इक्वल ट्रीट कर रहे हो। मतलब अगर यूजर ने 6 महीने पहले एक्शन लाइक किया और कल रोमांस लाइक किया, सिस्टम दोनों को सेम वेट दे रहा है। रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है क्या? नो, ह्यूमन प्रेफरेंस इवॉल्व होती है। अब तुम इंप्लीमेंट करोगे टाइम डिके लर्निंग। फॉर्मूला सिंपल है, वेट इक्वल्स बेस वेट मल्टीप्लाइड बाय डिके फैक्टर। न्यू फीडबैक का वेट फुल होता है, लेकिन पुराना फीडबैक का वेट कम होता जाता है। इसका मतलब क्या? सिस्टम का फोकस प्रेजेंट पर शिफ्ट हो जाएगा। पावरफुल एग्जांपल, यूजर पहले एक्शन पसंद करता था, अब वो रोमांस देख रहा है। तुम्हारा सिस्टम क्या करेगा? रोमांस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। देखा, अब सिस्टम सिर्फ स्टैटिक मेमोरी नहीं है, इट इज लिविंग मेमोरी। पास्ट इंपॉर्टेंट है, बट प्रेजेंट डिफाइंस यू। अब तुम क्या बना रहे हो? एक ऐसा सिस्टम जो यूजर के साथ इवॉल्व करे। कल यूजर अलग होगा और सिस्टम भी। सीन फेड, स्क्रीन पे रिकमेंडेशंस शिफ्ट हो रहे हैं। ओल्ड एक्शन हेवी लिस्ट ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय रोमांस ड्रामा। अब सिस्टम सिर्फ सीखता नहीं, अडेप्ट करता है। अब सिस्टम याद रखेगा कब क्या इंपॉर्टेंट था। अब तक सिस्टम को पता था क्या हुआ, अब सिस्टम को समझना होगा कब हुआ। दोनों लाइक्स हैं, लेकिन क्या दोनों सेम इंपॉर्टेंस डिजर्व करते हैं? बिल्कुल नहीं। रीसेंट फीडबैक एक करंट टेस्ट। ह्यूमन मेमोरी में भी ऐसा ही होता है। रीसेंट एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग, ओल्ड मेमोरीज फेड। देखा, सिस्टम ने खुद अडेप्ट किया बिना मैन्युअली चेंज किए। यूजर को लगेगा ये ऐप मेरी करंट मूड समझता है। एआई का रियल पावर प्रिडिक्शन नहीं है, टाइमिंग है। राइट कंटेंट, राइट यूजर, राइट टाइम। अब तुम क्या बिल्ड कर रहे हो? A system that doesn't just remember, but prioritizes memory intelligently. Your taste evolves, your system should too. अब सिस्टम समय को दिखाएगा। अब तुम्हारा सिस्टम समय को समझता है, अब उसे दिखाना भी होगा। देखा, यूजर का टेस्ट चेंज हो गया। सिस्टम ने सिर्फ लर्न नहीं किया, सिस्टम ने इवॉल्व किया। अब तुम्हारे सिस्टम के अंदर 2 मेमोरी लेयर्स है। वंस
लॉन्ग टर्म यूजर क्या है इसका रीजन? यूजर हिस्टोरिकली आपको ये पसंद था और अभी आप ये देख रहे हैं। क्या मैं और कुछ सजेस्ट करूं? टाइम डिके क्या करता है? पास्ट को कंप्लीटली डिलीट नहीं करता, बस उसका इन्फ्लुएंस कम करता है। प्रैक्टिकल आउटकम, यूजर बिहेवियर, अर्लियर एक्शन हैवी, नाउ रोमांस फेज। बेस्ड ऑन योर रीसेंट एक्टिविटी, इंस्पायर्ड बाय योर पास्ट प्रेफरेंसेस, योर टेस्ट इज इवॉल्विंग, डीप इनसाइट। ये सिस्टम सिर्फ रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर है। Introducing a new feature, the Time Insight Panel. It shows your taste trends over time. Action was high but is now decreasing. Drama is stable and romance is increasing. System अब सिर्फ recommend नहीं करता. System observe plus adapt plus explain करता है. ये देखो recent weights का trend historical से अलग है. इसी तरह system intelligently evolve करता है. Screen पे एक user scroll करता है. Different recommendations appear than before. User thinks ये app मेरे साथ बदल रहा है. स्टैटिक सिस्टम प्रेडिक्टेबल होता है, अडैप्टिव सिस्टम वैल्यूएबल होता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी में एक बात याद रखो, जो सिस्टम इवॉल्व करता है वही इंटेलिजेंट होता है। इसलिए हमेशा नए आइडियाज को एम्ब्रेस करो, और जो सिस्टम इवॉल्व करता है वही इंटेलिजेंट होता है। अब तक तुम्हारा सिस्टम स्मार्ट था, लेकिन अब सिस्टम को पर्सनल इंटेलिजेंस देना है। अभी तक क्या हो रहा था? सब यूजर्स, सेम वेट्स, सेम थिंकिंग। अब क्या होना चाहिए? ईच यूजर सेपरेट ब्रेन। अब सिस्टम एक नहीं है, हर यूजर के लिए अलग है। Imagine a streaming platform that learns from you. We used to build models from all movies and feedback. Now we use a new learning flow for each user. This filters feedback to build your unique model. Welcome to Aura Stream. Let's see your personalized picks. For action fans, we have intense thrillers. Whoa, these action picks are intense. Ooh, these thriller recommendations look perfect. Aura Stream adapts to you. User 1, देखो action hero. User 2 के लिए love story. अब सिस्टम सिर्फ adaptive नहीं है, अब सिस्टम individual aware है। पर्सनलाइजेशन का मतलब सिर्फ फिल्टर करना नहीं होता। पर्सनलाइजेशन का मतलब है हर यूजर के लिए सिस्टम अलग सोच रहा हो। नाउ आई इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना है? फर्स्ट, अपडेट फीडबैक सेव। नेक्स्ट, बिल्ड यूजर बेस्ड मॉडल। एंड फाइनली, यूज इट हियर। द फॉर्मूला इज वेट सब यूजर मॉडल यूजर मूवीज फीडबैक। अब तुम सिस्टम नहीं बना रहे, तुम हर यूजर के लिए एक अलग इंटेलिजेंस बना रहे हो। अब सिस्टम तुम्हारी जर्नी समझेगा। देखो, सिस्टम सिर्फ इंडिविजुअल यूजर को नहीं देख रहा, सिस्टम देख रहा है यूजर क्या सीक्वेंस में देख रहा है। यह है तुम्हारी पर्सनलाइज्ड जर्नी। तो नहीं दे, अब तुम्हारे पास यूजर का टेस्ट है, लेकिन तुम्हें एक और चीज समझनी होगी। यूजर क्या देख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस ऑर्डर में देख रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Aura Stream uses behavioral intelligence. Before, we just knew genres you liked. Now, we map your journey. Like action, drama, then thriller. हर यूजर एक पैटर्न फॉलो करता है। कोई स्ट्रेट एक्शन बिंज करता है, कोई एक्शन से इमोशनल स्टोरीज पे शिफ्ट होता है, फिर सस्पेंस में जाता है। ये है सीक्वेंस लर्निंग, और ये सेशन इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। सिस्टम को ये समझना होगा नेक्स्ट क्या देखना लाइकली है। बिग शिफ्ट। बिफोर, व्हाट यूजर लाइक्स, नाउ व्हाट यूजर विल लाइक नेक्स्ट। सिस्टम प्रिडिक्ट्स। Introducing our new feature, Continue Your Journey. Based on your history, we suggest a legal thriller, crime drama, or suspense story. Wow, that's exactly what I was looking for. Start your next adventure now. Use this new idea to boost those genres in recommendation. Final scoring, a new algorithm. Score equals preference plus similarity plus rating plus sequence boost. This boosts action, sci-fi, and fantasy. Here are the sequences. First, track sequence. Next, sort user history. Extract sequence pattern. And finally, predict next genre. Use this new idea to boost those genres in Imagine a streaming platform where recommendations evolve. Now, recommendations look like this. Deep insight. User का behavior static नहीं है. User एक story follow कर रहा है और system को उस story का next chapter suggest करना है. Transformation. अब आपके पास है learning, personalization, time awareness, user specific intelligence और नया behavioral prediction. ये है AI brain का power. Welcome to AI brain, where technology meets your mind. यह सिस्टम मुझे समझता नहीं, फॉलो करता है। It's like it knows me better than I know myself. अब तुम रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं बना रहे, तुम एक्सपीरियंस का फ्लो डिजाइन कर रहे हो। ऐप सिस्टम तुम्हें जानता है, लेकिन अब उसे यह भी समझना होगा तुम इस वक्त क्या फील कर रहे हो। यूजर का टेस्ट अलग होता है, यूजर का बिहेवियर अलग होता है, पर एक और चीज होती है,
Context, situation, plus mood, current intent. Same user, different needs. In the morning, we have short, light, and motivational content. At night, thriller and mystery stories for serious minds. And on weekends, and relax entertainment. There's been a big shift in AI. T before, it was about who you are. T now, it's about what you need right now. That's the power of AI brain. Now, उसके लिए UI पे क्या change करना है? UI moment. Night mode, late night picks for your thriller nights. And morning mode, fresh start movies for uplifting mornings. अभी 8 है implementation stage पे, see the simple version. Rule-based context detection. Next, adjust recommendation. And finally, add score. Next level context. Our AI can detect session length, scroll speed, click patterns, and recent searches. User opens app, sees right now for you. You seem to be in a thriller mood based on recent activity. User thinks ये random नहीं है, मुझे समझ के suggest कर रहा है. Personalization का last level क्या है? Right recommendation at the right moment. App system सिर्फ recommend नहीं करता. System समझता है कब क्या recommend करना है. Cinemind UI already intelligent है, personalized है, context aware है. अब तक सिस्टम तुमसे सीख रहा था. अब सिस्टम को खुद सीखना शुरू करना होगा. यूजर हमेशा लाइक या डिसलाइक करेगा? नहीं. मोस्ट यूजर्स लाइक बटन नहीं दबाते, डिसलाइक भी नहीं देते, बस स्क्रॉल, क्लिक, वॉच, स्किप करते हैं. सिस्टम को ऑब्जर्व करना होगा, सिग्नल्स विदाउट क्लिक्स. Our feedback system has evolved. Before, feedback was a simple like or dislike. Now we use behavioral insights for deeper understanding. This is a big shift. स्क्रीन पे एक यूजर स्क्रॉल करता है, एक्शन हीरो पे रुकता है, क्लिक करता है और देखता है, अगली मूवी स्किप कर देता है. यूजर अपने एक्शन से बता रहा है, सिस्टम को सुनना सीखना है. इसके लिए हमारा ऑटो फीडबैक जनरेटर बनाना है. इंस्टेड ऑफ लाइक और डिसलाइक, लर्निंग सिस्टम बनाना है. ये कोड है जो फीडबैक इन्फर करता है. इससे हमारा सिस्टम बेटर बनेगा. Welcome. Let's explore our live learning system. It works like this. User behavior leads to inferred feedback, which updates weights and generates new recommendations. For example, watching an action movie is a like, skipping a romance is dislike, and pausing a thriller shows interest. The system is learning our preferences. Action and thriller are trending up, while romance is trending down. This data helps us adapt. Explicit feedback rare होता है. Implicit feedback real truth होता है. Powerful evolution. Now system becomes passive learner, continuous learner, natural learner. Here's what our AI has learned about you. You tend to watch action movies fully. You often skip romantic content. And you explore thrillers but don't finish them. Welcome to the dashboard. Let's explore the next level combined model. The final score becomes preference plus similarity plus rating plus time decay plus sequence boost plus behavior signal. This integrates all signals for superior personalization. Let's see what it recommends today. Wow, this is spot on. मैं कुछ किया भी नहीं, फिर भी ये इतना accurate कैसे है? बेस्ट सिस्टम्स वो होते हैं जो पूछते कम है और समझते ज्यादा है. फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन. शो इन डैशबोर्ड. लर्निंग, सिमिलैरिटी, एक्सपेक्टेबिलिटी के यूजर स्पेसिफिक मॉडल्स इन. अब सिस्टम सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, अब सिस्टम अवेयर है. चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं. बिफोर क्लोजिंग, सिस्टम अब सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, वो समझता है यूजर को क्या पसंद है और क्या नहीं. हर लाइक और डिसलाइक एक सिग्नल है, यहाँ से सिस्टम का दिमाग बनाना शुरू होता है. अब सिस्टम सिर्फ टेस्ट नहीं समझ रहा, वो मूवीज के बीच रिलेशन भी देख रहा है. कौन सा मूवी दूसरे के करीब है. अगर तुम्हें एक मूवी पसंद है तो सिस्टम जानता है नेक्स्ट क्या दिखाना है. Welcome to Smart Recommendations, our decision engine. Let's look at the dashboard view. The Smart Recommendations table shows movies with scores. Scores are calculated with preference, similarity, and rating. अब सब कुछ कंबाइन हो रहा है. तुम्हारी पसंद, सिमिलर मूवीज और क्वालिटी, और सिस्टम डिसाइड करता है. बेस्ट रिकमेंडेशन का मतलब है बेस्ट फिट फॉर यू. अब सिस्टम स्टैटिक नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज होता है, यूजर के साथ इवॉल्व करता है, हर यूजर के लिए अलग सोचता है. Learn and Improve module transforms user actions into evolving, personalized and explainable recommendations. ये सिर्फ recommendation system नहीं, एक evolving intelligence है. Up to now, we have covered all steps for create, distribute, learn and improve modules. Next session से हम implementation के बारे में सोचेंगे. Bye for now. See you in the next session. थैंक यू इस सेशन का पार्ट बनने के लिए. मुझे होप है आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी होगी. हम और डीप डाइव करेंगे और एआई को और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. कीप लर्निंग,
keep building. AI से ideas start, journey continues. Bye for now. See you in the Back in the next city where the session. lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on trial.